Hi everyone. I hope everybody is listening to me and I am clearly very audible to all of you. Please say hi or just keep writing in the chat box. Do Hi, not ma'am. turn on your mic. Keep writing in the chat box. Hello, Hello, ma'am. ma'am. Hello, ma'am. Very Hello, Good good ma'am. evening, afternoon. very good afternoon. जो भी आपको अच्छा लगे. So Good today afternoon, ma'am. we are all of us here to learn about or understand about, or you can say just discuss about use of psychology in everyday life. Okay, I think I should just present my screen. Okay, so visible. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, great. So this is what our workshop today is all about. So because it is a workshop, it is meant to be interactive. तो मेरे बारे में वैसे तो इंट्रोडक्शन दे दिया है ऑलरेडी किरण मैम ने. मैंने अपना इंट्रोडक्शन का स्लाइड बनाया था, तो आई थिंक इट इज ऑफ नो यूज नाउ. लेकिन मैं आपके बारे में जरूर जानना चाहूंगी. कहाँ से हैं आप लोग, क्या करते हैं आप लोग. प्लीज कीप सेंडिंग मी इन द चैट बॉक्स. आई एम रीडिंग साइमल्टेनियसली. मैं साथ साथ में आपके मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ. मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, इसलिए ताकि जब मैं आगे बढ़ूं तो मुझे ये पता हो कि मेरी ऑडियंस क्या है, कौन है, मुझे कौन लोग सुन रहे हैं. तो उसी तरीके से आई मूव फॉरवर्ड. ओके, so someone is doing MBA, okay, from Bathinda, Amritsar, Ludhiana, working in a government school. Great. MBA student, okay, nice. Pursuing graduation, Rahul Goyal, pursuing graduation in what? Rashi Garg class, doing MA psychology. Oh, great, that's nice. MA education final year, that's great. So, what are your expectations from this particular workshop? I mean, मेरा पहला सवाल शायद आपसे यही रहेगा कि psychology word सुनते ही what comes in your head? Interesting, intriguing, or knowing about people, or therapy. क्या आता है सबसे पहले आपके माइंड में जब आप वर्ड सुनते हैं साइकोलॉजी, या अगर आपको कोई आके कहता है ओके आई एम स्टडीइंग साइकोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड. ओके, done BTech and MBA. I'm working in Punjab government revenue department. Nice. Understand consumer psychology as a marketeer. Okay, we come to know about thinking and behavior of people. All right, yes, of course. Studying of human mind. Okay, great. So almost you have an idea what we think, understand about our surroundings. Great. So almost we all over here, जितने भी लोग हम लोग मीटिंग में हैं, हमको एक basic idea है that what psychology is all about, right? So let's move a little bit ahead. Psychology as a subject शुरू कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग हमेशा से ह्यूमन बीइंग्स लाइक सिंस फॉर एवर वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस कि यहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग अप इनसाइड द ब्रेन. कोई ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आपसे कोई बात कर रहा है, कोई कोई डिसीजन मेक कर रहा है, या किस तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड ओवर हियर. इसको लेके ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से बहुत क्यूरियस रहे हैं और इसी वजह से ये सब्जेक्ट की शुरुआत हुई. वेल, टॉकिंग अबाउट
एंशियंट टाइम्स इन इंडिया 2000 years back की चाइनीज हिस्ट्री आप देखें, इंडियन हिस्ट्री आप देखें, in many Asian countries, in many European countries. Okay, I think I lost my connection. So if you can please let me know if I am visible and audible to you once again. Yes, ma'am. Visible and audible. Yes, I ma'am. see that. So I think I can continue. Yes, ma'am. Sure, ma'am. All right. So I was talking about ancient times, ancient Indian history, ancient Chinese history. आप scriptures पढ़ें तो आपको उसमें मिलेगा that how people were treating psychiatric disorders or how people were trying to talk about mind, soul. अलग अलग टर्म्स यूज करते थे, कॉन्शियसनेस यूज किया, आत्मा यूज किया, मन का इस्तेमाल किया, चेतन मन का इस्तेमाल किया. बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे एशियन कल्चर में प्रेजेंट हैं, और ना ही सिर्फ हमारे चाइनीज कल्चर, रशियन कल्चर, बहुत टाइम से ये चीजें चलती आ रही हैं. लेकिन फिर भी साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इट बिगैन इन 1800s. दिस इज द पॉइंट. नाउ व्हाई? क्योंकि ह्यूमन माइंड को समझना, आत्मा हमने बोला, मन हमने कहा, कॉन्शियसनेस हमने कहा. साइंटिस्ट, बेसिक साइंसेस क्या करती हैं कि कोई एक चीज होती है पर्टिकुलर, कुछ कंक्रीट होता है जिसको वो पकड़ के उस पे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है. ठीक है, समथिंग दैट इज विजिबल टू अस, समथिंग विच कैन होल्ड, विच वी कैन फील, विच वी कैन टच. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन माइंड, हमें पता ही नहीं है कहाँ है. इट्स कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट. तो वो एज अ सब्जेक्ट डेवलप नहीं हो पाया टिल 1800s. लेकिन human beings, as you know, have been very very curious about our behavior, our mind, our functioning. तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आना तो था और आया, लेकिन थोड़ा सा लेट in 1800s. So curiosity is the root cause of why psychology as a subject began and how psychology as a subject started. So what is psychology? Psychology is study of the soul, the science of behavior and mental processes. छोटी छोटी दो definitions हैं, but they are immense. Completely covers the gist of the subject. Soul हमने बोला, हमारे अंदर जो कुछ भी abstract है, this is a human body, and there is something which gives us life. There is something which motivates us to act. There is something inside us which makes us think. There is something inside us जो हमें moral behavior करने देता है. Ethics हैं, morals हैं, values हैं, relationships हैं. कुछ है हमारे अंदर जो हमसे ये सब कुछ करवाता है, जिसे हम कहते हैं soul. So psychology is study of that soul. And if you talk about sciences, proper definition की बात करें, by definition what is psychology, then it is the science of behavior and mental processes. Very simple, 2 words, behavior, mental processes, but it completes everything. What is behavior? Can anyone tell me? I'll start reading the messages in the chat box. Okay. What is behavior? Study of human behavior हम कह रहे हैं कि psychology करता है. What is behavior? What is included in behavior? Anyone? The pattern of actions, reactions, yes. How you express yourself, it's how one behaves. Well, yes. Way of conducting, speaking, talking with other person. Yes. How we react. Great. So everything. मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, that is my behavior. I am looking at my laptop screen, a behavior.
I am moving my hands, again a behavior. You guys are all listening, again a behavior. I am sitting upright, you might also be sitting upright, that is again a behavior, right? Physical actions, behavior. But not only physical actions, there are certain things which are included in behavior जो शायद हमें नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना? तो कभी कभी कोई गुस्से में बात करता है तो हम क्या बोलते हैं, बिहेव योरसेल्फ, राइट? टीचर्स बहुत बोलते हैं ना क्लास में, बिहेव योरसेल्फ, behave properly. So that is not something that is completely external. आपका माइंडसेट कैसा है, आप क्या सोच के क्या बोल रहे हैं, वो सारा कुछ भी आपका जो है बिहेवियर में इंक्लूड होता है. पैटर्न ऑफ थॉट्स, जेस्चर प्रोसेस, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, यस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बिहेवियर. दूसरा शब्द, मेंटल प्रोसेसेस. What about it? What are the mental processes? Thoughts, emotions, and how they both intertwine. बहुत सारे processes होते हैं. मैं यहाँ बैठी हूँ, I am paying full attention to my screen, I am paying full attention to what I am speaking. मेरा पूरा ध्यान है इस पे. तो ये जो process है ध्यान का, अटेंशन का, मेंटल प्रोसेस है. आई हैव टू मेक अ डिसीजन, लाइक व्हेन आई वाज मेकिंग दिस पीपीटी आई वाज डिसाइडिंग कि शुड आई यूज दिस ऑरेंज बैकग्राउंड और शुड आई यूज दिस ग्रीन, और इसके ऊपर मैं व्हाइट से लिखूं या मरून कलर से लिखूं. आई वाज मेकिंग सर्टेन डिसीजंस. सो डिसीजन मेकिंग, राइट? रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, ये वाली सब्जी या वो वाली सब्जी, डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग, मेंटल प्रोसेस. थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस. एनालाइजिंग, मेंटल प्रोसेस. कुछ आपको याद करना है, मेमोरी, मेंटल प्रोसेस. कुछ सीखना है, लर्निंग, मेंटल प्रोसेस. सो देयर आर lot of mental processes that are going on in our teeny tiny brains compared to the number of mental processes that we have. Brain is teeny tiny, yes. So just imagine ऑन अर्थ जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे बड़ा ब्रेन हमारे पास है, राइट? लाइक इफ यू फ्लैटन इट आउट, ऑब्वियसली सबसे बड़ा ब्रेन हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ साइज, सरफेस एरिया, ठीक है? लेकिन फिर भी इतने छोटे से ब्रेन में इतने सारे मेंटल प्रोसेसेस हैं जिसको स्टडी करने का काम सिर्फ एक सब्जेक्ट का है, विच इज साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी हैं जो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं. तो दिस इज द रीजन व्हाई नीचे मैंने एक छोटा सा लाइन ऐड कर दिया है दैट दिस सब्जेक्ट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ अप्लाइड, एजुकेशनल एज वेल एज थ्योरेटिकल साइंस. आप इसको तीनों में से किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं. अप्लाइड, आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को पढ़िए, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, अप्लाइड. और आई थिंक यही करने हम इस वर्कशॉप में आए हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी अप्लाई इट. तो यस, एजुकेशनल ऑफ कोर्स एंड थ्योरेटिकल, थियोरी पढ़ेंगे तभी तो कुछ अप्लाई करेंगे. सो यस, अप्लाइड, एजुकेशनल एंड थ्योरेटिकल साइंस. सो लेट्स मूव अहेड. And well, yes, this is a sort of introduction on what psychology can do. अब देखिए, psychology can answer so many questions. What is mind? Consciousness. Mind क्या होता है? Consciousness क्या होता है? हम जागते क्यों हैं? सोते क्यों हैं? Self क्या होता है? Self confidence क्या होता है? मैं चीजें याद कैसे रख पाती हूँ? मुझे कैसे पता ये सही है, ये गलत है? मुझे कोई चीज पसंद है, मुझे कोई इंसान पसंद है, क्यों है? मुझे कोई चीज नहीं पसंद है, मुझे कोई इंसान नहीं पसंद है, तो क्यों नहीं पसंद है? हाउ कैन ह्यूमन बींग्स कमिट हॉरिबल क्राइम्स? लोग क्राइम क्यों करते हैं? मर्डर करते हैं, जेनोसाइड होता है, देयर आर देयर आर सो मेनी हीनियस क्राइम्स, आई जस्ट डोंट रियली वांट टू गो इनटू दैट. तो क्यों करते हैं, कैसे कर लेते हैं? उनके एथिक्स नहीं होते, हम हमेशा ये सोचते हैं ना. तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कौन करता है? साइकोलॉजी.
डू वी हैव फ्री विल? बर्निंग क्वेश्चन। क्या हम जो कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, क्या हमारे पास फ्री विल है? क्या हमारे पास चॉइस है? या फिर हमें हमारा इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है, या बायोलॉजी, या फिर हमारे कुछ अनकॉन्शियस मोटिव्स? क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है? एवरीथिंग, every question is answered by psychology. And yes, there are so many more things that psychology can answer. It has answered, it is answering, and it will continue to answer. All right. Okay. So one question from you guys. Are you guys comfortable? Yes, ma'am. Comfortable हैं जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, interact कर रही हूँ? Are you guys comfortable? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. आगे बढ़ते हैं. Oh yes, so I included a quote in between that psychology is a subject of life, death and the in-betweens. तो आप देखिए बीच में बचा क्या? कुछ रह गया? अगर हम इसको साइकोलॉजी का डेफिनेशन माने, साइकोलॉजी इज सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, डेथ एंड द इन-बिटवीन्स, तो बीच में रह क्या गया? कुछ भी नहीं. So basically everything. Psychology is a subject of everything. But specifically human beings. इंसान को स्टडी करने का काम साइकोलॉजी करती है. So yeah, why is it important to you? You can clearly see that हमने अभी बात की 2 मिनट पहले कि इंसान को समझने का काम करती है. हमारा माइंड क्या है, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं. That simply means साइकोलॉजी हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो हमें अपने आप को समझने में हेल्प करती है. हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. What do we want in life? What is happening in my life? Psychology will help you understand it. Right? And also, अगर साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग का साइंस है तो ऑब्वियसली सिर्फ आप ही ह्यूमन बीइंग नहीं है, राइट? दूसरे सब लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं. तो हमें दूसरों को समझने में भी मदद मिलती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से. एंड ये तो हम सभी चाहते हैं, दूसरों को समझना, for better friendships, for better family relationships, for better relationships in general. Okay, I have to tell you this, that whenever I enter into a new class, ठीक है, and whenever I ask students कि आपने psychology क्यों choose किया, right? Why have you chosen to study psychology? तो मेरे पास एक बहुत ही कॉमन आंसर है जो काफ़ी डोमिनेट करता है, जो हर बार उठ के आता है. मेजॉरिटी लोगों का आंसर वही होता है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट पीपल थिंक, यू नो, लाइक दैट. मुझे समझना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, राइट? So that's very simple, and this answer clearly indicates that how interested every one of us is दूसरों को समझने में, right? But and also it's very clear कि अगर साइकोलॉजी दूसरों को समझने में हमारी हेल्प कर सकती है तो खुद को समझने में भी हमारी हेल्प कर सकती है ना? तो एक छोटा सा ट्रेलर है ये कि हाउ साइकोलॉजी इज यूज्ड इन डेली एक्टिविटीज. कब से बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी सब कुछ स्टडी करता है, सब कुछ स्टडी करता है. करता क्या है? छोटा सा ट्रेलर. ऑलराइट, सो एक कॉलम है आपके सामने विच इज नेम्ड एज बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. सो साइकोलॉजी हेल्प्स अस इन बिल्डिंग आवर रिलेशनशिप्स, एंड वी ऑल नो, शायद हमें बचपन से एक सेंटेंस पढ़ाया जाता है दैट ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, राइट? विच क्लियरली इंडिकेट्स कि सोशल होना हमारा इनेट नेचर है. हम जब से पैदा होते हैं वी आर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विद अदर ह्यूमन बीइंग्स,
चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आप बाहर जाते हो, चाहे आप नई सिटी में अकेले रहने जाते हो, यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल। हमेशा, हर मिनट, हर घड़ी आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से ऑलमोस्ट आप इंटरैक्ट कर रहे होते हो। दैट सिंपली मीन्स जैसे ही आपने किसी दूसरे इंसान के साथ इंटरैक्शन किया, दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप, राइट? फैमिली रिलेशनशिप्स हमें पता है, हमें सिबलिंग्स के बारे में पता है, हमें फ्रेंड्स के बारे में पता है, हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। एंड देयर आर कलीग्स, आप जहाँ काम करते हैं आपके कलीग्स होते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पीयर ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद आपके नेबर्स होते हैं, उसके बाद आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं, उसके बाद ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप शायद पर्सनल लेवल पे नहीं जानते लेकिन फिर भी आप जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास की राशन की दुकान वाला, आप एवरीडे उसके पास जाते हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, ब्रेड, बटर और एटसेट्रा एटसेट्रा। आप उसे पर्सनली नहीं जानते कि वो इंसान कैसा है, बट यू स्टिल नो दैट पर्सन। वो भी आपको जानता है बाय फेस दैट दिस पर्सन इज माय रेगुलर कस्टमर, और आप भी उसको जानते हैं बाय फेस, आप रेगुलरली मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो क्योंकि साइकोलॉजी हेल्प करता है हमारे सारे ह्यूमन एक्शंस को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, दैट सिंपली मीन्स कि रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना भी हमें साइकोलॉजी सिखाता है, ठीक है ना। आपको किससे कैसे बात करनी चाहिए, कब क्या बात करनी चाहिए, किस तरीके से आपको मूड चेक करना है ना। तो एवरीथिंग इज taught by psychology to us, ठीक है जी। तो आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'm reading your messages right now. We can't say the study of animal mind is not included in psychology. No, it is also included in psychology. I would like to know your name, Mr. Newbie. It is written right now. uh, Animal psychology. एनिमल साइकोलॉजी इज बडिंग न्यू फील्ड जिसमें हम एनिमल साइकोलॉजी की एनिमल साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अगर आप में से किसी के पास पेट्स हैं, डॉग है या कैट है, तो आप उन्हें वेट के पास लेके जाते होंगे, ठीक है। एंड यू कैन वी हैव इंसिडेंसेस जिसमें डॉग को डिप्रेशन हो जाता है, दे हैव दीज disorders, they are having mood swings, they are having emotional disturbances, they also have eating disorders, ठीक है। ये सब कुछ एनिमल्स में भी होता है। तो यस, एनिमल साइकोलॉजी, ट्रॉमा, एग्जैक्टली। सो these are all things that are included in animal psychology, a branch of psychology. So yes, animal mind को understand करने में भी help करती है psychology. I want to know what children and kids think. Child psychology, I guess that is your go-to branch of psychology if you really need to know what children and kids think and why do they behave the way they do. Yes, ma'am. I'm very interested in them. Yes, it is most definitely. Yeah. Okay, so relationships के बारे में हमने बात की, ठीक है। और जैसे अभी इन्होंने बोला कि चाइल्ड और किड्स कैसे सोचते हैं, वो समझने में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो समझना चाहते हैं। आई थिंक हम सबकी लाइफ में वो चीज़ हेल्प भी करती है ना। तो अगेन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, राइट? यू आर building some sort of relationship with the children, with the kids, with your students, with your husband, your wife, your parents, and how to do that. This is what is, done with the help of psychology. This is what psychology helps you to do. बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास. I think we all must have done that.
whenever we needed permission from our parents for something, ट्रिप पे जाना है या फ्रेंड के घर स्लीप ओवर पे जाना है या मूवी देखने जाना है, ठीक है, तो what we used to do is we used to check पापा का मूड ठीक है आज. when he comes home at in the evening तो हम पहले चेक करते हैं उनका मूड ठीक है तो हम बात करेंगे, है ना, नहीं तो फिर हम रुक जाते हैं. we wait till his mood is okay और फिर हम बात करते हैं. हमने ये कहाँ से सीखा? what are we doing exactly over here? इमोशंस को स्टडी कर रहे हैं, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमें पता है कि इस टाइम पे उनसे बात करेंगे तो उनका रिएक्शन कैसे होगा, पता है हमें, राइट? So very simple, very basic example of how we ourselves are using psychology in daily life, every single day. And yes, that is also something that can help you build a relationship with your father. Okay, so moving on, enriching careers. Psychology helps us understand ourselves and our skills better, way better. ठीक है, of course as a human being, अगर अपनी बात करें तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं आप खुद को जितने अच्छे तरीके से जानते हैं कोई और उतने अच्छे तरीके से आपको नहीं समझ सकता. करेक्ट, ठीक है. अपने आप को समझने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें अवेयरनेस लेके आनी पड़ती है. इसी रीजन से 12th के बाद या 10th के बाद जब आपसे पूछा जाता है ओके नाउ व्हाट करियर डू यू वांट टू चूज, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हम कौन से सब्जेक्ट में बेटर हैं, क्या चीज़ हम पढ़ सकते हैं, डू वी हैव वेरी गुड एनालिटिकल स्किल्स, डू वी हैव वेरी गुड रिसर्च स्किल्स, डू वी हैव वेरी गुड आर्टिस्टिक स्किल्स और व्हाट्सएवर, राइट? हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं. हम अपने आप को समझने की कोशिश हमारी सबसे पहली वहीं से शुरू होती है जब हमें पता चलता है कि नहीं अब तो करियर चूज करना पड़ेगा, है ना. तो साइकोलॉजी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ बेटर. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट योर स्किल्स आर. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर एप्टीट्यूड, योर एटीट्यूड, and it also helps you to pinpoint what are your best skills and also how to use them in the best possible manner. So this is how psychology can also enrich careers. और क्योंकि आप अगर इसको पिछले पॉइंट से रिलेट करें बिल्डिंग रिलेशनशिप्स के साथ, तो मान लो योर करियर हैज किक स्टार्टेड एंड यू आर वर्किंग एज मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, तो आपको अपने बॉस से कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, आपको अपने जूनियर से काम किस तरीके से करवाना है, ठीक है, ये सब आपको बिल्डिंग रिलेशनशिप्स के थ्रू पता चलता है. किस तरीके के रिलेशनशिप आपको कैसे कहाँ बिल्ड करने हैं, ठीक है. सो दैट अगेन हेल्प्स यू इन enriching your career, in giving your career a boost, a growth. So yeah, again, psychology is being used daily. अगर आप देखें ध्यान से तो ये दो वो चीजें हैं जो लाइफ में परमानेंटली चल रही हैं. It's going on and on, right? So moving on, 3 more things. Improving communication skills. I think we all can agree. हम सब इस बात पे अग्री कर सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं टू लिव योर लाइफ परफेक्टली वेल. आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए अच्छे तरीके से, और अगर कोई आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है तो आपको किस तरीके से सुनना चाहिए, क्या वर्ड्स आपको बोलने चाहिए, क्या वर्ड्स आपको नहीं बोलने चाहिए, राइट? आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का होना चाहिए. या फिर जैसे स्टार्टिंग में सबने कहा कि दूसरों को समझना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, तो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आर दे इंटरेस्टेड इन यू, आर दे नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आर दे इवन लिसनिंग टू यू, ठीक है. तो ये सारी जो है सब कुछ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है. इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. इतना स्पेशल है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग कोर्स बन जाता है. whenever you check out the syllabuses of any psychology degree, the communication skills is a very important part.
is a very prominent course in psychology because it's all about communication, right? मुझे आपको समझना है, आपको मुझे समझना है, तो I think communication is the key. And not only what I speak, not only what are the words that are coming out of my mouth, but also what my facial expression is, what my body language is, that is also included in communication. And psychology helps you understand both verbal and non-verbal communication in a much better way. So जैसे ही आप कम्युनिकेशन के बेसिक्स को समझ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर सकते हैं. एंड आई थिंक आप सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो आपने देखा होगा कितनी सारी वर्कशॉप्स लगती हैं आजकल. जैसे हम आज ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप, तो उसी तरीके से बहुत सारी वर्कशॉप्स लगती हैं, स्पेशली ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स. So we can all agree to the fact that how much communication skills are important. Every fourth workshop that you look, that you come across, the advertisement you come across on social media is about personality development or communication skills. The two things which, yes, psychology deals with. So yes, see, kitni important hai psychology. And guess what? Being in the department of psychology, being a student of psychology, मुझे बहुत मज़ा आता है किसी को ये बताने में कि बहुत अच्छी चीज़ है psychology. जिसको कहते हैं ना अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो सेम थिंग, आई एम अ स्टूडेंट, राइट? तो मेरा प्रोडक्ट साइकोलॉजी है, मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है और मुझे उसकी एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत मज़ा आता है. और मज़ा मुझे इसलिए आता है बिकॉज आई माई सेल्फ एम फैसिनेटेड विद द सब्जेक्ट. ओके, तो आई होप कि ये सारा कुछ सुनने के बाद आपको भी उतना ही मज़ा आए और आप सोचें कि यार चलो साइकोलॉजी पढ़ते हैं. इट्स दैट इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक अगर आपने एक बार भी ये सेशन ख़त्म होने के बाद, नॉट ड्यूरिंग, सेशन खत्म होने के बाद अगर आपके माइंड में एक बार भी ये थॉट आ गया कि यार साइकोलॉजी इज इंटरेस्टिंग, या साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, या फिर आई रिकमेंड समवन टू स्टडी साइकोलॉजी बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग, I will think that my session was successful. So yeah, I think I am improving my communication skills as well. And then we'll move ahead. I'll stop blabbering nonsense. We'll move ahead. Decision making. Decision making is also something that we do every single day of our lives, almost every moment of our lives, right? आजकल सब लोग Netflix देखते हैं, Amazon Prime देखते हैं. There are so many web series going on, so many movies releasing on the OTT platform. तो हम टीवी चलाते हैं या हम फोन में अपना ऐप खोलते हैं Netflix का और फिर स्क्रॉल करते हैं. क्या देखें आज? क्या देखें आज? We are making a decision. लॉकडाउन है, सब घर में बैठे हैं. Every 2 hours you are hungry, right? फिर सोचते हैं अब क्या खाएं? Decision making. कहीं बाहर जाना है, you need to decide कौन से कपड़े पहने. Decision making. So I think decision making is going on every single moment of our lives, from small trivial decisions, जैसा कि मैंने अभी बताया, to big life changing decisions. Who I want to marry, where should I live, what job should I apply, which career should I choose, where should I invest my money. From small decisions to big decisions. This is a part of life. Decision making is part of our life, right? Part of our daily life. और डिसीजन मेकिंग के पीछे एक पूरा प्रोसेस चलता है. lot of information is collected. फिर हम उसमें से रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल
सॉरी लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, and then so on, so on, so on. So there is a complete process which goes behind making decisions, and psychology is the subject which is clearly defining that process, which is trying to make you guys understand, sorry, make us all understand what the process behind decision making is. So yes, जब हमें प्रोसेस समझ में आ जाता है तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं वो अपने आप बेटर हो जाती हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस इन अ लाइफ वांट कि हमारे डिसीजंस जो हैं बेटर हो, राइट, हम अच्छे डिसीजंस बनाएं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना इस बात के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो डिसीजन मेकिंग, once again, psychology is being used extensively. And last but not the least in any which way, building self-confidence. Confidence एक ऐसी चीज है जो हम सबको चाहिए, which is very very important. Self-confidence है क्या? In short, it is your evaluation about yourself. आप अपने आप को कैसे आंकते हैं, that is self-confidence. आपको क्या लगता है कि आप कितने अच्छे हैं, that is self-confidence. It's self, it's not about other people. कौन आपके बारे में, कई बार ऐसा होता है कि there are people जिनको सारी दुनिया बहुत अच्छा समझती है कि अरे ये कितना बंदा, अरे क्या पर्सनालिटी है, क्या इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है, एंड एवरीथिंग, एंड दैट पर्सन इज वेरी लो ऑन वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस. व्हाई? बिकॉज चाहे उसको सारी दुनिया अच्छा समझती है but वो खुद को अच्छा नहीं समझता, राइट? So that is why self-confidence is all about you and all by yourself. And psychology helps to understand you better. अपने आप को, हमारी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस है, हम डेंजर पे किस तरीके से काम करते हैं, कोई खतरा आता है हमारे सामने तो हाउ डू वी रिएक्ट टू इट, कोई अपॉर्चुनिटी आती है हमारे सामने तो हाउ डू वी रिएक्ट टू दैट अपॉर्चुनिटी. आई थिंक ऑल ऑफ दैट, the understanding of all of that helps us gain more confidence with ourselves, right? And I think जब हम intro ले रहे थे तो काफी लोगों ने कहा कि वो MBA student हैं या MBA कर रहे हैं, तो I think SWOT analysis is something which you all must be very familiar with. Am I right? I think I'll just shorten up my screen and check the messages if you're sending any. Okay. Okay. To express yourself, yes. Many things we learn from people, right? Okay. So we'll move ahead. Well, I hope I'm not making it really, really boring. So please give me a thumbs up if you all are still here with me, if you're listening. Yes, ma'am, we are listening. Okay, मुनीत को बोरिंग लग रहा है. कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग आपके लिए भी बना देते हैं. Give me 2 minutes to change my pace. Complicated. How come? Complex है. Of course, yes. It's about human being, and human being is complex. There are so many memes on the internet कि how कि कौन किसको किस तरीके से समझता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं,
देर और सदियों से वाइफ जोक्स चल रहे हैं, गर्ल जोक्स चल रहे हैं कि लड़कियों को समझना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ना। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू रियली चेंज दैट, बिकॉज लड़कियों को ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स को इन टोटलिटी समझना मुश्किल होता है, एंड उसको ही सिंप्लीफाई करता है जो है आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी विल सिंप्लीफाई इट आकाश, एब्सोल्युटली। ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई, दैट हाउ साइकोलॉजी इज यूज्ड इन आवर डेली एक्टिविटीज, बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, enriching your careers, improving your communication skills, your decision making and building your self confidence। ठीक है ना, ये 5 वो चीजें हैं जो आई थिंक हम सब लोग डेली यूज करते हैं, एंड यू ऑल कैन कंप्लीटली अग्री टू इट। आई गेस इतना तो आप लोग अग्री करेंगे कि ये 5 चीजें जो है हमारे साथ हमेशा चलती हैं। एंड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर इज that psychology helps us understand that psychology is being used over here। ठीक है ना, आप जब भी कोई डिसीजन मेक करते हैं या आप जब भी कोई डिसीजन बनाते हैं, और whenever you are communicating with someone or whenever you are trying to make a new friend, okay, trying to make a new friend से की बात करते हैं। I have a small example। let's say आप किसी नई क्लास में जाते हैं, यू टेक एडमिशन इन न्यू स्कूल और यू टेक एडमिशन इन न्यू कॉलेज, या फिर आप नए वर्क प्लेस पे जाते हैं, आपको नया जॉब मिला है, आप नए वर्क प्लेस पे जाते हैं, आपका पहला दिन है। ठीक है, तो हु डू यू थिंक यू आर गोइंग टू मेक फ्रेंड्स विद फर्स्ट? आपको क्या लगता है आपकी फ्रेंडशिप सबसे पहले किससे होगी, एक नई क्लास में या फिर आपके एक नए जॉब पे? मैम जो मुझे कंफर्टेबल फील कराएगा, मतलब पहले बात करेगा, आके दोस्ती करेगा। जो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा, ये तो एक प्रोसेस हो गया। आई डोंट थिंक कोई भी आपको एक दिन में या 1 घंटे में कंफर्टेबल फील करा पाएगा, राइट? तो आप सबसे पहले आप किससे बात करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आप नई क्लास में गए हैं, आप जाके एक बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले किससे बात करेंगे? टीचर। मैम टीचर से। Next to me, Gaurav is, I think, absolutely right। जो आपके बगल में बैठा होगा, बिल्कुल बगल में या सामने, राइट, जो सबसे नजदीक होगा आपके। एक फैक्टर, या गर्ल? I can see your priorities, Vineet। Karan is saying that good-looking people, another factor, good-looking people, जो हमारी आंखों को अच्छा लगेगा, राइट? परमिंदर कह रहे हैं जो इंटरेस्टिंग लगेगा, another factor। Now ये जो एक फैक्टर है, इसमें शायद इंटरेस्टिंग की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप किसी भी नई क्लास में जाते हैं, सबसे पहले आप उससे बात करते हैं जो आपके बगल में बैठा होता है। सो टेक्निकली आपका जो पहला रिलेशनशिप है किसी भी नई जगह पे, वो शुरू किससे होता है? जो आपके सबसे पास में होता है, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर बोला कि जो गुड लुकिंग होता है, जो फिजिकली अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना, जो आपकी आंखों को जो इंसान अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है आपको कि जिससे मैं बात कर सकता हूँ, राइट? Who can entertain me? ये तो सेल्फिश हो गया। ओके, फिर भी उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो आप इमेजिन करो कि आपकी फ्रेंडशिप कैसे होती है जब नई क्लास में जाते हैं या नए कॉलेज में जाते हैं। स्पेसिफिकली तुम कहाँ से हो? अरे मैं लुधियाना से। तुम भी लुधियाना से? हाय फाइव, ग्रेट। Oh, you from Amritsar? I am also from Amritsar. Hi. ऐसे शुरू होती है फ्रेंडशिप कि नहीं? जान पहचान। The one who may take initiation to interact too, absolutely। मान लो आपकी बगल में जो इंसान बैठा, आप उससे बात कर रहे हो, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तब तो कुछ नहीं होगा ना।
इट्स म्यूचुअल. सो आई थिंक ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका सबसे पहला दोस्त कौन बनेगा, आप सबसे पहले किससे इंटरैक्ट करेंगे, ये सारे फैक्टर्स कौन आपको सिंप्लीफाई करके देता है? साइकोलॉजी. मोर सो अगर आप स्पेसिफिकेशन में जाएं तो सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये एक बहुत छोटी सी चीज थी जो शायद हम सबने किसी ना किसी लाइफ के स्टेज पे महसूस की है, नए फ्रेंड्स बनाए हैं. ठीक है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा था कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पीछे पीछे चल रहे हैं? When we stop and we think, when I'm asking you the question right now, तब आप सोच रहे हो. नहीं तो हम जाते हैं, it's so normal, it's so effortless for all of us कि हमें कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि हम स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है ना यूज कर रहे हैं टू लिव आवर एवरीडे लाइफ, बट वी आर. और यही सारे एफर्टलेस प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने का काम हमारा सब्जेक्ट करता है. साइंस है, ठीक है. नाउ आई एम पिकिंग दिस ग्लास अप, इसमें कुछ ना कुछ फिजिक्स होगा. आई एम डैम श्योर, आई एम वेरी वीक एट साइंस, सो डोंट आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट. इसमें कुछ ना कुछ फिजिक्स होगा. ग्लास में पानी है, लिक्विड है, गैस है, वॉल्यूम है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. साइंस इज गोइंग ऑन, राइट? बट लेकिन क्या सारा टाइम हम when we cook food, when we eat food, when we sit, when we stand, when we push or we pull, क्या हम फिजिक्स के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते. But it's still there. It's a very basic science of material things. Same. Psychology is there. Psychology is everywhere. लेकिन हमारे लिए हमारे डेली एक्शंस में इतना एफर्टलेस है कि हमें नहीं पता कि इसके पीछे कितना बड़ा प्रोसेस जाता है. आप लोग जो यहाँ पे मेरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मैसेज टाइप करते होंगे, कुछ फिर दे डिलीट देयर वर्ड्स, दे टाइप बैक. और कई बार हमारे साथ कम्युनिकेशन के दौरान ऐसा होता है, व्हेन वी आर टेक्सटिंग समवन, तो हम कुछ लिखते हैं, फिर उसको नहीं, दिस इज नॉट लुकिंग फाइन, वी टाइप इट अगेन एंड देन वी सेंड. Right? This is so effortless to us, but there is a whole process going on over here in our brains. और ये सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने का काम साइकोलॉजी करता है. This is what psychology is all about. हम बहुत आराम से एक लाइन में कह देते हैं, अगर कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा होता है या कोई साइकोलॉजिस्ट आपके सामने आता है, तो तुम्हें तो पता होगा मैं क्या सोच रही हूँ. हाँ पता है, बट ऐसे नहीं पता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस बिहाइंड इट. ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप साइकोलॉजी की सारी थियोरीज पढ़िए, साइकोलॉजी के सारे प्रिंसिपल्स पढ़िए, तभी आप समझ पाएंगे व्हाट इज साइकोलॉजी. एवरीडे लाइफ में हम इतनी चीजें यूज करते हैं कि आप अगर थोड़ा थोड़ा हर एक चीज पे ध्यान देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, तो आपको काफी चीजों के बेसिक्स समझ में आने लगेंगे. राइट? एंड दिस इज व्हाट साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट. सो ये पिक्चर देख रहे हैं आप साइड पे? यस मैम. है ना? यूजुअली जब हम एक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो आई थिंक ऐसा ही कुछ आता है माइंड में कि हम उसके सामने बैठे होंगे, हम उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और वो हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, ठीक है, एंड दे विल गिव अस अ सॉल्यूशन. दैट इज व्हाट काउंसलिंग इज ऑल अबाउट और थेरेपी सेशंस ऑल अबाउट. It is. But again, this picture, I have put in this picture in front of you, इस बात को reinforce करने के लिए कि ये एक aspect है जो usually जनरल लोगों के माइंड में आता है जब भी वो साइकोलॉजी का नाम सुनते हैं या साइकोलॉजिस्ट का नाम सुनते हैं या साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते हैं. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है, बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है कि आप अपनी लाइफ में हो रहे प्रॉब्लम्स को लेके आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं. बट
ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी की जरूरत हमें हर वक्त रहती है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रीइंफोर्स, इसीलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे बीच में यूज किया। थोड़े से और हिडन जेम्स निकाल के लाए आपके पास। हम देखते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ छुपी हुई है। एंड एडवर्टाइजिंग इज द नंबर वन थिंग दैट कम्स टू माय माइंड एवरी टाइम व्हेन समबडी आस्क मी कि सबसे ज्यादा साइकोलॉजी, ऐसे कैसे साइकोलॉजी हर जगह यूज होती है? वेल, आई थिंक advertising industry, this is the number one example that comes to my mind whenever this question is there. Okay, I'll start reading your messages once again. Who all agrees that advertising जो है बहुत ज़्यादा influential है हमारी लाइफ पे? It is. हर 2 मिनट पे एडवर्टीजमेंट होती है। आप अगर नॉर्मल टीवी देख लें तो एडवर्टीजमेंट्स लॉट ऑफ। आप यूट्यूब चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स। आप कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एडवर्टाइजिंग इज देयर। प्रोडक्ट डिजाइन अकॉर्डिंग टू डिमांड, यस। So advertising is something that's psychology, yes, absolutely. Advertising एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज करती है। Yes, it does. बिल्कुल सही बोला आपने। If you watch Coca-Cola ad, they want you to connect with family emotions. No, they don't want you to connect with family emotions. This is the trick. वो फैमिली इमोशंस दिखाते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट्स में ताकि आप कोका कोला से कनेक्ट करें। दिस इज द पॉइंट। एडवर्टाइजमेंट्स चेंज आवर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। हमारी नीड भी नहीं होती, एब्सोल्युटली। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड, यस। मार्केट का सेंटिमेंट समझिए। लोग ऐसे कहते हैं ना, सेल्स पर्सन को या मार्केटर को या बिजनेसमैन को, मार्केट का सेंटिमेंट समझिए। सेंटिमेंट है तो साइकोलॉजी है। दे मेक मनी, दे गिव मनी, एब्सोल्युटली। एग्जाम्पल, प्राइसेस ऑफ 499, 399, 149, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एग्जाम्पल अनिल जी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 499 is 1 less than 500, बट हमें ऐसे लगेगा कि नहीं, 4 वाली लाइन में चल रहा है ना तो सस्ता है। On other hand, Mountain Dew, they want you to think brave when you drink it. उन्होंने अपने ड्रिंक को ब्रेवरी के साथ कनेक्ट किया। ब्रेवरी इज अ ह्यूमन वर्च्यू जो हर किसी में होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, ठीक है। जिसमें कम होती है उसको और चाहिए होती है। They have connected, they have picked up a great human virtue ताकि आप ब्रेवरी के साथ उनके ड्रिंक को कनेक्ट करें और खरीदें। Everything is fake in ads from product to mindset. Well, fake है या नहीं ये तो नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि इट इज डेफिनेटली प्लेइंग ट्रिक्स विद योर हेड। एंड व्हाई? बिकॉज दे आर यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अप टू 90% डिस्काउंट, यस, अप टू साइड में छोटा सा लिखेंगे, लेकिन आप स्टोर में जाएंगे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, और जब चले ही गए हैं स्टोर में तो फिर कुछ खरीद ही लाएंगे, राइट? लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज पूरी की पूरी एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज करके ही वो चल रही है पूरी की पूरी इंडस्ट्री, ठीक है।
Oh, let me read one or two new messages and then I'll just enlarge my screen. Comparison to other useless products. Yeah. Plays prominent role in the advertisement field. Absolutely. They gave some promo offers. Yes. वो इसीलिए देते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए. Okay. So yeah, there I go. So मैंने मेजर वंस 3-4 लिखे हैं मैंने. स्केर्सिटी प्रिंसिपल है, कंसेंसस है, मियर एक्सपोजर इफेक्ट है, कंडीशनिंग है. ये कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री यूज करती है. यू मस्ट हैव सीन दैट जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो मेजर ब्रांड्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन सेलिब्रिटीज को अपनी एड में कास्ट करें जो जिनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जो ज्यादा पॉपुलर हैं लोगों के बीच में, राइट? दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, राइट? बिकॉज दीज पीपल, दीज सेलिब्रिटीज आर लाइक्ड बाय पीपल. तो जब वो हमें जो इंसान पसंद है वो कोई प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर रहा है तो हमें वो प्रोडक्ट भी अच्छा लगने लगता है. दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लर्निंग, कंडीशनिंग. लेकिन होता क्या है, एक बार में कभी पॉसिबल नहीं है. लेकिन आप देखिए जगह जगह पे बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं. शाहरुख खान के हाथ में कोको कोला, राइट? करीना कपूर खान एंड लक्स. एंड एवरी सिंगल टाइम यू वॉच टेलीविजन यू आर बम्बार्डेड विद दैट इमेज, राइट? सो आप जो लाइकेबल पर्सनालिटी है उसके साथ उस प्रोडक्ट को एसोसिएट करते हैं और उस प्रोडक्ट को भी पसंद करने लगते हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस. एसोसिएटिव लर्निंग, कंडीशनिंग. ठीक है ना? दूसरी चीज, आप किसी भी बड़े स्टोर में जाइए, मल्टी ब्रांड स्टोर में जाइए, जो सेल्फ सर्विस वाला स्टोर होता है, ठीक है ना? लेट्स से आप साबुन खरीद रहे हैं, ओके, यू आर ट्राइंग टू बाय बाथ सोप. बहुत सारे वैरायटीज हैं, लेकिन आपकी टेंडेंसी होती है आप वो ही पिक करते हैं जिसकी एड आपने सबसे ज्यादा देखी होती है, राइट? या फिर मान लो कि आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट शेल्फ पे लगे हुए हैं, ठीक है, सजे हुए हैं, एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि दे आर ऑल पीनट बटर्स, विच वन शुड आई बाय? तो आप वो वाला बाय करेंगे जिस ब्रांड का नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा. दैट सिंपली मीन्स जो आपकी आंखों के सामने बार बार आया होगा, जिससे आप बार बार एक्सपोज हुए होंगे. दिस इज हाउ एडवर्टीजमेंट वर्क्स. जो दिखता है वो बिकता है. दैट इज व्हाट exposure does to you. So again, it is using the principle of social psychology. आप ऑनलाइन शॉपिंग सब लोग करते हैं आजकल, मिंत्रा से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, देयर सो मेनी ऑनलाइन साइट्स टू बाय थिंग्स फ्रॉम. ठीक है, आप यूजुअली आप देखेंगे जो उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या जो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे क्या करते हैं वो, लास्ट फ्यू पीसेस लेफ्ट, sold out of stock, last one piece left. और जब आप वो खरीद लेते हैं, you put it in your bag really fast, okay कि ये तो बिक रहा है बहुत जल्दी जल्दी से, you put it in your cart and you buy it really soon and then you are so relieved, नहीं कि मैंने तो खरीद लिया. This is how advertising plays with your head to give you that sense of achievement. So are you getting my point? कि पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करती है, एंड इट इज मेड टू डू सो. इसीलिए तो एडवर्टाइज कर रही है. एंड इट यूजेस ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू इन्फ्लुएंस अस. Okay, again, let me see if you are still with me here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, thank you. Yes, ma'am. Thank you
guys. Thank you for being with me till now. We'll move ahead like really fast. I think हमारा पेस थोड़ा सा स्लो है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं. हेल्थ केयर सेक्टर. हेल्थ केयर सेक्टर, अब आप बोलोगे कि हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे साइकोलॉजी इन्वॉल्व है. दैट इज ऑल अबाउट मेडिकल साइंस, दैट इज ऑल अबाउट बायोलॉजी, मेडिसिन, ड्रग्स. तो फिर साइकोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है? साइकोलॉजी इम्पैक्ट्स अ लॉट अबाउट हाउ वी थिंक एंड हाउ वी एक्ट, हाउ वी ईट एंड हाउ वी एक्सरसाइज. नीचे एक छोटा सा नाम लिखा है मैंने, कर्ल्ड फिटनेस. कर्ल्ड का ऐप आप सबने देखा होगा, बहुत एडवर्टीजमेंट है उसकी. आई थिंक लास्ट ईयर व्हेन द लॉकडाउन जस्ट बिगैन, कर्ल्ड फिटनेस वाज अ रेज. It was giving you home workouts, it was giving you workouts from famous people, it was providing you live workouts. कोई है आप में से जिसने curled fitness use किया हो? I will try to read your messages now. Okay. Yes ma'am, offline center visit किया था. Offline use किया है, that's great. तो आपने देखा है जब आप curled fitness के classes करते हैं तो they give you a rating. रेटिंग देते हैं आपको in comparison to all the other people who also have joined that class. स्कोर करते हैं आपको. Yes ma'am, yes. After every class. After the class, right? What does that score mean? That scores means nothing. उस स्कोर का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो फिर करते क्यों हैं? To give you the sense of achievement. Yes, you have achieved something. To give you that psychological reward so that you will come back. मैम हर क्लास के बाद वो एक समथिंग एंजॉय, वो लाइक जैसे क्या कहते हैं, खुशी मनाते हैं. जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, Exactly. लाइक हमने कुछ अचीव करा है, जैसे कुछ अचीव करा है वो तो हिप हिप हुए करते हैं 1 मिनट के लिए कि आपने क्लास अचीव कर ली. Yes, that you have finished the class, you have achieved something, you have done this workout, great. Right? और ये जो डाइट प्लान्स चलते हैं आजकल, आई थिंक एवरीबडी इज वेल अवेयर दैट डाइट प्लान्स आर सो इन रेज. किसी को वेट लॉस के लिए चाहिए, किसी को वेट गेन के लिए चाहिए, ठीक है. दीज डेज किसी को थायराइड के लिए चाहिए, किसी को डायबिटीज के लिए डाइट प्लान चाहिए. डाइट प्लान्स आर अ रेज. Why do you think that is a rage? Psychology. They influence you by making you think about it again and again, by making you think that you need to follow this particular diet plan in order to, stay fit, in order to lose weight, or in order to gain weight, or in order to treat your thyroid. Again, once again, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए. दैट अगेन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल स्टेचर ऑफ दैट हॉस्पिटल और सोशल स्टेचर ऑफ दैट डॉक्टर. उस डॉक्टर के पास, उसके पास तो बारी ही नहीं खत्म होती, इतने मरीज देखता है वो दिन में. अच्छा ही होगा, उसी के पास जाएंगे. Isn't this how we make decisions? Again, psychology. आपको ये नहीं पता कि सच में उसके पास इतने पेशेंट्स होते हैं, या he makes them, he keeps them waiting so that उसका ये स्टेचर मार्केट में जाए कि उसके पास लाइन खत्म नहीं हो रही है. समझ रहे हो? This is psychology, and this is how psychology influences our healthcare system as well as our daily health. फूड फैट शुरू हो जाते हैं, कभी कोई सुपर फूड बन जाता है जीरा, कभी सुपर फूड है एलोवेरा, कभी सुपर फूड है एवोकाडो, कभी सुपर फूड है चिया सीड्स. आई मीन कैसे? Psychology. There are influencers on social media. How do they influence you? Psychology.
So psychology is hidden everywhere in our lives. Workplace, सब लोग काम करते हैं, सब लोग जॉब पे जाते हैं, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, आप जॉब करते हो, नहीं भी कर रहे हो तो आगे करोगे. तो वर्क प्लेस जो है इट इज वो एक ऐसी जगह है जहां पे शायद आपको साइकोलॉजी का सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्ट्रेसफुल प्लेस. ठीक है, आपके पास डेडलाइंस होते हैं, आपके पास वर्क प्रेशर होता है, आपके पास पीयर ग्रुप होता है, आपके पास स्ट्रेस होता है, आपको आगे बढ़ना है, आपके गोल्स भी वहीं पे सेट होते हैं. ठीक है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेटवर्किंग स्किल्स, सब कुछ वहां पे यूज हो रहा है. राइट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको किसी को ऑर्डर करना है, आपको टीम मैनेज करनी है, आपको अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, अपने बॉस को कह के एचआर को बोलना है कि मेरी भाई मुझे थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए मेरी. ठीक, आपको छुट्टी लेनी है, आपको किसी से हेल्प चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको मीटिंग में बैठना है, मीटिंग में अपना व्यू पॉइंट देना है. देयर आर 10 people और 15 people इन अ मीटिंग. आपको इतनी बड़ी मीटिंग में आपको कुछ कहना है. ठीक है, सारी चीजें जो है साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज करती हैं. आपको किससे फेवर चाहिए, छोटा सा काम है, आपको रिक्वेस्ट करना है किसी को कुछ, यू विल बी यूजिंग पर्सुएशन टेक्निक्स. आपको सैलरी बढ़वानी है अपनी, पर्सुएशन टेक्निक्स. आपको छुट्टी मांगनी है अपने बॉस से, पर्सुएशन टेक्निक्स. राइट, आपके आप अपने किसी कलीग के साथ आप कुछ ड्यूटी एक्सचेंज कर रहे हैं, सोशल एक्सचेंज इज गोइंग ऑन एंड इट इज सोशल एक्सचेंज इज अगेन बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स. यूं ही नहीं करता कोई. आप उसका जो काम कर रहे हैं या आप उससे जो हेल्प मांग रहे हैं वो तभी करेगा जब उसे पता है कि आप इन रिटर्न उसका उतना ही काम, उतना नहीं तो उससे ज्यादा तो कर ही देंगे, वो तभी आपको फेवर देगा. वर्क प्लेस इज दैट प्लेस वेयर दिस हैपेंस. एंड ये सभी प्रिंसिपल्स यूज होते हैं. ठीक है ना, आपका बॉस आके आपको डांट के चला जाता है, यू आर वेरी एंग्री, व्हाट डू यू डू? गुस्सा तो आपको आपके बॉस पर आया है, लेकिन क्या आप वहीं के वहीं उस पर चिल्ला देंगे? नो, यू डोंट यू डोंट यूजुअली डू दैट, राइट? आप ऐसा नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? आपने अपने आप को कैसे रोका? गुस्सा आया था आपने, यू मैनेज्ड इट, एंगर मैनेजमेंट, राइट? उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन दिया, यार मीटिंग में था, ऊपर वाले बॉस ने कुछ बोला होगा तभी आके बोला हमें. आपने एक्सप्लेनेशन दिया उसके बिहेवियर का. यू आर यूजिंग एट्रीब्यूशन, राइट? या फिर कोई आपका कोई कलीग है जो आपसे ठीक से बात करके नहीं गया, ही वॉज वेरी रूड टू यू, यू लाइक ये तो है ही खड़ूस. अगेन यू आर एक्सप्लेनिंग हिज बिहेवियर कि वो तो है ही खड़ूस, इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा है, राइट? So what are you doing over here? You are using all the principles of psychology to stay afloat in the workplace. अपनी लाइफ सीधी सीधी चलाने के लिए अपने जॉब पे, अपने काम की जगह पे आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं. पॉलिटिक्स, I think we can all agree that politics तो एक शो है मैनिपुलेशन का. Don't you think so? It's a show of manipulation. तो ये जो मैनिपुलेशन का शो है, ये तो ये पॉलिटिशियन सीखते कहाँ से हैं? They use principles of psychology. Well, or rather should I say, they misuse the principles of psychology. To be in power. आप सबने ये सुना होगा और आप सब लोग ये जानते हैं कि पावर बहुत बड़ी चीज है जी. सबको पावर चाहिए. कुर्सी के लिए नेता लोग क्या कुछ नहीं करते. पावर चाहिए क्यों? What is so maddening about power कि ये कुछ भी करते हैं? Psychology. Need for power is an innate need in human being. Power
सबको अच्छी लगती है। छोटी सी चीज है, कोई क्लास में नॉटी बच्चा होता है, टीचर क्या करती है, उसको मॉनिटर बना देती है टू मेक हिम बिहेव प्रॉपरली। टीचर क्या करेगी, उसको मॉनिटर बना देगी। एंड गेस व्हाट, टीचर हाफ ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होती है। व्हाई? क्योंकि उसने उस बच्चे को पावर दे दी, मॉनिटर बना दिया। सबको पावर अच्छी लगती है। नीड फॉर पावर इज एन इनेट नीड। और इसी पे बेस्ड पॉलिटिशियंस जो हैं, दे मिसयूज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन ऑर्डर टू थ्राइव। दीज डेज अगर अच्छे पॉलिटिशियंस हैं तो वो अच्छे से यूज करते हैं, और अगर बुरे हैं तो वो मिसयूज करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास ओरेशन स्किल्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है वो कितनी रैलीज करते हैं, कितनी जगह भाषण देते हैं, इम्प्रॉम्प्टू भी भाषण दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार वो ऐसे पेपर तैयार करके लाते हैं और तभी भाषण देते हैं। इम्प्रॉम्प्टू कहीं भी भाषण दे देते हैं। दे कैन स्टार्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ठीक है ना। दे हैव वेरी गुड ओरेशन स्किल्स, ठीक है। जो पार्टी का लीडर होता है, दे हैव ब्यूटीफुल अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। इतनी जनता, आप समझ रहे हो इंडिया की जनता कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, उतनी सारी जनता में, ठीक है, उम्मीद जगाना, I don't think it's a small task. They can do it. कैसे? And they बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं। टीवी पे कब रोना है, टीवी पे कब हंसना है, they know it very well. अपनी पर्सनल ट्रेजेडीज को किस तरीके से यूज करके पब्लिक सिंपैथी गेन करनी है, राइट? इट कैन बी फॉर गुड, इट कैन बी फॉर बैड, दैट डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट आई एम सेइंग इज वो यूज करते हैं, राइट? इट्स वेरी इंटेलिजेंट एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। परसुएजन, दे आस्क यू टू वोट फॉर देम, और हम जाके करते हैं। वो हमें कन्विंस कर लेते हैं कि हमें वोट करो। मुझे किसी ने किया होगा, आपको किसी ने किया होगा, पर किसी ने तो किया है ना। तो ये सारी टेक्निक्स उनके पास कहां से आती हैं? दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। बिकॉज वंस अगेन, जो पॉलिटिक्स है चीजों के साथ नहीं की जा सकती, पॉलिटिक्स हमेशा लोगों के साथ की जाती है, राइट? और लोगों की स्टडी तो सिर्फ एक ही है, साइकोलॉजी। हम खुद भी बहुत कुछ यूज करते हैं जो हम रियलाइज भी नहीं करते, टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, ठीक है। मान लो मैंने आपसे कोई सवाल किया, और मैंने अभी किया था, मैंने बोला कि ओके नाउ आई विल सी कौन कौन मेरे साथ अभी तक है, ठीक है। और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और मैंने 2 सेकेंड 3 सेकेंड वेट किया, तो मुझे रिस्पॉन्सेज आने लगे। यू सेड यस मैम, यू गेव मी अ थम्स अप कि दैट यस मैम वी आर स्टिल लिसनिंग, वी आर स्टिल हियर। कुछ नहीं किया मैंने, छोटा सा ट्रिक था, आई वेटेड। आपको किसी से कोई बात करनी होती है, जैसे मान लो आपने मुझसे सवाल किया, मैम कहाँ के हो आप, ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हो, लेट्स सपोज दैट वी आर सिटिंग फेस टू फेस, और आपने मुझसे एक छोटा सा सवाल किया, मैम कहाँ से हो आप, ठीक है। मैंने आपको एक वर्ड में आंसर दे दिया कि हाँ जी इस सिटी से हूँ मैं, फाइनली। लेकिन आपको और जानना था, तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 सेकेंड वेट कीजिए, ठीक है, तो शायद मैं अपने आप ही आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। एंड आई थिंक वी ऑल यूज दिस ऑलमोस्ट a lot of times, but we don't realize it. Again, nothing, छोटा सा ट्रिक है, using of course psychology. Then to immediately feel confident, हम immediately confident कैसे feel करते हैं? मान लो you are working all day, you are sitting in front of your laptop, obviously lockdown है, सबका work from home चल रहा होगा, तो you're sitting in front of your laptops, you're feeling lazy, you're feeling dull, tired, तो आप एकदम से क्या करते हैं, एकदम से you just stand up in a good upright position, ठीक है। आप अपना बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से रखते हैं, आप अपना सिर ऊपर करते हैं, इधर उधर देखते हैं, एंड यू इंस्टेंटली फील कॉन्फिडेंट।
क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग साइकोलॉजी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक्स फ्रॉम साइकोलॉजी. How gestures and postures can make you feel from psychology. To judge closeness in a group of people. ठीक है, मान लो आप किसी नई जगह पे जा रहे हो, ठीक है ना. नई जगह पे क्यों जाना है, हम इस एग्जाम्पल को स्क्रैप कर देते हैं, काटा मारते हैं, नया एग्जाम्पल ढूंढते हैं. आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, और आप देखते हो कि आपके साथ वाले टेबल पे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठा है. ठीक है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आपके साथ वाले टेबल पे बैठा है, एंड आप अकेले हो. ठीक है ना, आप अकेले हो, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम. आप उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, और आप बहुत इजीली ये जज कर पाते हो कि ये ग्रुप कितना क्लोजनेट है, और किस तरीके की फ्रेंडशिप होगी उनके बीच में. आप बहुत इजीली जज कर लेते हो. कैसे? Very simple, by just observing how they are talking, whom they are looking at when they are laughing. ठीक है, और ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है कि जैसे मान लो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, या आप किसी ग्रुप में बैठे हो और कोई बहुत हंसी वाली बात होती है, सब लोग हंसते हैं, तो जिसको आप सबसे पहले देखते हो, ठीक है ना, यू आर यूजुअली द मोस्ट क्लोजेस्ट टू दैट पर्सन. और इसी कुछ छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके आप बहुत इजीली जज कर लेते हो कि ये कितना क्लोज है फ्रेंड्स का ग्रुप आपस में. सी, आप बहुत आराम से साइकोलॉजी यूज कर रहे हो, हर रोज यूज कर रहे हो, बस हमें पता भी नहीं है. टू चूज फ्रेंड्स एंड इवन टू चूज whom टू डेट. ठीक है ना, आपको रिलेशनशिप में एंटर करना है, यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर. ठीक है, आपको किसको डेट करना चाहिए. ठीक है, देयर आर सो मेनी डेटिंग एप्स. आप किसको चूज करते हैं, किसको नहीं चूज करते हैं, या आप फ्रेंड किसको बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं. यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन मेकिंग योर डिसीजन, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते. अगेन, all of these things was to reinforce the fact that how psychology is present everywhere, because this workshop is all about using psychology in everyday life. और अभी तक I think I have अपनी तरफ से I tried to make you really clear कि कितने सारे dimensions हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ पे हम principles of psychology का इस्तेमाल कर रहे हैं. पेरेंटिंग, मुझे याद है व्हेन आई वाज रीडिंग योर मैसेजेस, किसी ने लिखा हुआ था चैट में कि पेरेंट्स साइकोलॉजी यूज करते हैं, एंड यू कैन क्लियरली सी कि मैंने पूरा का पूरा एक अलग स्लाइड बनाया है पेरेंटिंग पे. ये एक ऐसा स्किल है पेरेंटिंग जो आई थिंक साइकोलॉजी के सारे प्रिंसिपल्स को यूज करता है, सारे A to Z, सबके सब एस्पेक्ट आते हैं उसमें. ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उसमें आता है, सोशल साइकोलॉजी उसमें आता है, लर्निंग उसमें आता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन उसमें आता है. ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें आता है. अब ये नाम देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं. दे यूज वैलिडेशन, फंक्शनल एनालिसिस, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, इमोशनल टॉलरेंस, असर्टिवनेस, गाइडेड डिस्कवरी. पेरेंट्स सब कुछ यूज करते हैं. हमने कभी सोचा था कि इतने सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज करके हमारे मम्मी पापा ने हमें बड़ा किया है? बट ट्रस्ट मी, दे हैव यूज्ड इट ऑल. दे हैव यूज्ड एवरीथिंग. दे यूज every tool in their kitty to raise their child to be the best child in the world. सब कुछ करते हैं पेरेंट्स. आपको रिवॉर्ड भी देते हैं, आपको पनिशमेंट भी देते हैं, आपके टेंट्रम्स टॉलरेट भी करते हैं, आपको इमोशंस समझने में हेल्प करते हैं, आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. आप फ्रेंड से लड़के आते हो स्कूल में, तो घर आके आप किसको बताते हो? पेरेंट्स को बताते हो ना. एंड दे लिसन टू यू एंड दे हेल्प यू फाइंड अ सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है ना. जब उनको लगता है हमारे बच्चे बड़े होने लग गए हैं, तो वो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देते, वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं.
ठीक है. आई थिंक वी ऑल राइट नाउ जितने भी लोग यहाँ पर हैं इस वर्कशॉप में, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस इज एडल्ट, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर पेरेंट्स डोंट गिव अस लाइक सॉल्यूशंस, तुम्हें ये करना चाहिए. दे डोंट से दैट. आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वो अपना सजेशन देते हैं या वो अपनी गाइडेंस देते हैं, राइट. जब आप छोटे थे तो आपको बोलते थे कि ये करो. So they are almost using every psychological principle that is there to raise. मैम अभी भी कहते हैं. Just a second, please. हाँ जी. मैम अभी भी कहते हैं. अभी भी कहते हैं. बाहर मत जाओ, जल्दी आ जाना, निकलना नहीं, बाहर है, ये है, वो है, मत जाओ. That's love in short. And also अब आप ये जो आपने sentences बोले हैं, बाहर मत जाओ, जल्दी आ जाना, ठीक है, खाना खा लो, खाना टाइम पे खा लेना, रात को देर तक मत जागना, सुबह जल्दी उठ जाना, साइकोलॉजी है. हाँ. एब्सोल्युटली बैंग ऑन आकाश. साइकोलॉजी है, क्योंकि जब आपको बार बार ये चीज जस्ट हम सिर्फ एक छोटी सी चीज एक छोटे सेंटेंस पे बात करूंगी मैं. रात को जल्दी आ जाना, जल्दी घर आ जाना, ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस है जो हम सबने हमेशा सुना है, ठीक है. शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारे पेरेंट्स को भी कहते थे, हमारे पेरेंट्स हमें भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, ठीक है, रात को जल्दी आ जाना. ऑलराइट. आप जब बचपन से एक ही सेंटेंस बार बार सुनते हो, ठीक है, तो आप ये देखो कि आपका माइंडसेट बन जाता है कि हमें रात को जल्दी घर आना है. दिस इज द राइट थिंग टू डू. Get it? So this is how your behavior is shaped. This is how your behavior is being shaped. Shaping हो रही है आपके behavior की, धीरे धीरे करके. Shaping principle of psychology is being used here. So yeah, parenting is big deal and it uses almost all the principles of psychology. स्लाइड कौन सी चल रही है मुनीत? पेरेंटिंग वाली स्लाइड चल रही है. पेरेंटिंग वाला स्लाइड इस टाइम पे ऑन स्क्रीन है, बट इट्स ओनली बिफोर जॉब. यस, बिकॉज सी उसके बाद शायद आप उस एज में आ जाते हैं जब यू आर गेटिंग योरसेल्फ रेडी टू बी अ पेरेंट, इवन इफ यू आर नॉट. अगेन मैंने इस चीजें सिर्फ इसीलिए बताई हैं टू रीइंफोर्स अगेन द फैक्ट दैट साइकोलॉजी इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है जी, हर एक लाइफ एस्पेक्ट में साइकोलॉजी प्रेजेंट है, यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल्स अलग अलग. ठीक है, देखिए ये एक 2 घंटे का वर्कशॉप है. सारे प्रिंसिपल्स के बारे में डिफाइन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई गेस यू गेटिंग माई पॉइंट. आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन योर एवरीडे लाइफ. आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में साइकोलॉजी यूज होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ, और कैसे यूज होती है, कहाँ कहाँ पर यूज होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ. आई थिंक यू आर स्टिल हेयर विद मी. यहाँ पर मेरे साथ आए हैं इस जर्नी में. यस मैम. एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, व्हाट अबाउट डोपामीन. अगेन if we really want to talk about dopamine, बिल्कुल ही अलग कैटेगरी हो जाएगी. डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर which is in the nervous system. इसके काफी सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें. ये देख रहे हैं आप, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लिखा है फर्स्ट बॉक्स में. इसमें
देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू स्टडी साइकोलॉजी. अभी तक मैंने बात की कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ पर है. बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि हर जगह पर है, राइट. लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने के भी, साइकोलॉजी स्टडी करने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है. सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. लाइक हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन किस तरीके से साइकोलॉजी में इन्वॉल्व है. जब हम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टडी करते हैं, जैसे अभी अभी जो क्वेश्चन आया डोपामीन स्टडी करते हैं, हम हमेशा मूड स्विंग्स को हार्मोन्स के साथ लिंक कर देते हैं. तो जब हम अपने हार्मोन्स को स्टडी करते हैं कि ये वाले हार्मोन की वजह से मूड अच्छा होता है, ये वाले हार्मोन की वजह से मूड खराब होता है, ये वाले हार्मोन की वजह से ये वाले हार्मोन की वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें डर लगता है, हमें एंजाइटी होती है, ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर ये काम करता है. डोपामीन इज द हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर, ऑक्सीटोसिन इज अ हैप्पी हार्मोन. बहुत सुना होगा आपने. तो दिस इज अबाउट द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो क्या क्या पार्ट क्या क्या फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. बेसिकली हाउ योर बायोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर साइकोलॉजी. दैट इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव पे आए, विच इज द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव टॉक्स अबाउट चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप हुआ, प्लस किस तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग जो है डेवलप हुआ. सबको पता है पहले हम जंगलों में रहते थे, आदिवासी थे, हमारे पास ऐसे सुंदर सुंदर घर नहीं थे, हम केव्स में रहते थे, कच्चा खाना खा जाते थे, कुकिंग टेक्निक्स नहीं थी, एग्रीकल्चर टेक्निक्स नहीं थी, ठीक है, कोई सोसाइटी नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था. तो किस तरीके से उन चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और किस तरीके से जो आज का बिहेवियर है, यू कैन कनेक्ट इट विद द प्रीवियस टाइम्स, यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू एवोल्यूशन. ठीक है ना. छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम सब कहते हैं व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स, लड़कों को हमेशा सुंदर लड़की चाहिए होती है और लड़कियों को हमेशा पैसे वाला लड़का चाहिए होता है, राइट. हम बहुत सारे जोक्स आते हैं इस पे. एक बहुत ही सेट पर्सपेक्टिव है, ठीक है. जब आप अरेंज मैरिज में जाते हैं तो हम लड़की सुंदर देखते हैं, लड़का वेल सेटल्ड देखते हैं, राइट. व्हाई? This is very well explained by the evolutionary perspective, because in earlier times the major work of female was to reproduce. इसीलिए लड़की का सुंदर होना important है, जो अब तक चला आ रहा है. And the major work of the male species was to look out for food, win bread for the family, bring out food on the table. तो इसीलिए अभी तक भी यही चला आ रहा है कि मेल जो है वेल सेटल होना जरूरी है. This is one explanation. And this explanation is from the evolutionary perspective. तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी पर्सपेक्टिव्स आपके सामने बॉक्सेस में हैं, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी को पढ़ने के, ठीक है. अलग अलग साइकोलॉजी नहीं है, अलग अलग तरीके हैं साइकोलॉजी को पढ़ने के, अलग अलग तरीके हैं ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके हैं. एक है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक हो गया एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एक है आपका साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव. ये जो हम हमेशा ये इमेजिन करते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कंफर्टेबल सा सोफा होगा, वहाँ हम लेट के हम बात करेंगे, साइकोलॉजिस्ट हमारी बातों को सुनेगा, एनालाइज करेगा, रिजल्ट देगा. दिस इज इंक्लूडेड इन द साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव. आप कुछ चीजें करते हैं, आप कुछ बिहेवियर करते हैं, आप कुछ बोलते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है. दैट इज द साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव, राइट. देन बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, इसमें आपके बिहेवियर्स के थ्रू आपकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की जाती है. ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव. इसमें इसका मेजर प्रिंसिपल ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो इनहेरेंटली दे आर गुड, दे आर इनहेरेंटली गुड. उनके पास चॉइस होती है हमेशा, वो अपना काम खुद करते हैं,
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल एक्शन दैट दे डू, और इसी पर्सपेक्टिव से वो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसी पर्सपेक्टिव से वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव टू स्टडी साइकोलॉजी. देन देयर इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में सारे आपके मेंटल प्रोसेसेस आते हैं, सारा आपका कॉग्निशन आता है, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, योर लैंग्वेज, decision making. All of these processes are into cognitive psychology, और ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू आपके बिहेवियर को, आपकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है, को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. एंड देन देयर इज सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव. सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव आपकी सोसाइटी किस तरीके से बनी हुई है, आपके कल्चर्स किस तरीके से बने हुए हैं, और वो आपके बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको जानने की कोशिश करता है आपका सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव. तो ये अलग अलग तरीके हैं साइकोलॉजी पढ़ने के. आई होप यू स्टिल देयर विद मी. I can't read your messages, so please say yes or no. Yes, ma'am. Okay, all right. So these are the different ways in which you can study psychology. ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके हैं. आप किसी भी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन एक्शंस को, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, because as we already said in the starting that it is a little complex to study human mind, तो obviously हमें बहुत सारी explanations की ज़रूरत है. And yes, all of these perspective is giving you ample time, ample options कि आप अलग अलग तरीके से उसको explain कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको समझ सकते हैं. How a human being behaves the way they do, and why do they behave what they do. Again, this is a little advertisement from my side कि आपको psychology क्यों पढ़नी चाहिए. I think अब तक I have made very very clear. I don't think कि मुझे और ज़्यादा इस चीज़ को reinforce करने की ज़रूरत है that psychology is damn important, so that you can have better understanding of others. Yeah, to make accurate decisions. Hell yes. To improve your memory, of course. Memory का process समझ जाएंगे तो हम memory improve भी कर सकते हैं अपनी, right? To make wiser financial decisions. Now that is interesting, right? Psychology can help you understand your finances, help you understand your decision-making process. So obviously, money is very important. तो अगर आपको अच्छे financial decisions लेने हैं तो भी आपको psychology पढ़ना चाहिए. To get better grades? Well, yes, absolutely yes. आपकी learning better होगी, आपकी memory better होगी, आप अपने आप को better जानते होंगे, आपका confidence अच्छा होगा. So yes, your grades will be good. Your academic success will be on an all-time high if you study psychology, right? To become more productive. Now, productivity is everything, right? आप घर पे बैठे हैं, कहीं आ जा नहीं रहे हैं, आपका वो ही एक कमरा है, वहीं से आपको काम करना है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, राइट? सो टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग बंद कर दीजिए. एक साथ 4 काम करने से आप हाईली प्रोडक्टिव नहीं होंगे कभी भी. दिस इज द बिगेस्ट मिथ एवर. जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हैं. नो यू आर नॉट. इंस्टेड आप एक ही काम पे पूरा फोकस करें, उसको फटाफट खत्म करें एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. This is how you can be more productive. Plus, ज़्यादा जानने के लिए ज़्यादा psychology पढ़ें, right? See how well I'm advertising? To be healthier, both mind and body, absolutely yes. हमारा mental health completely relies on psychology, completely. क्लिनिकल पर्सपेक्टिव मैंने अभी तक आपको बीच में कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया बिकॉज मुझे नहीं लगा कि वो एवरीडे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है. लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक जो ब्रांच है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके लिए आई थिंक इफ़ यू
want to help people with good mental health, or if you want to have a good mental health yourself, तो भी it's a very valid reason to study psychology. To build critical thinking skills. Critical thinking is absolutely necessary for good decision making, is absolutely necessary to perform well in your job, is necessary to perform in your exams, is necessary to live your everyday life, to improve your relationships. So yes, critical thinking skills can be built up by studying psychology. And of course, मेरी slide छोटी पड़ गई, इसलिए मेरे points खत्म हो गए. But trust me, मेरे points खत्म नहीं हुए हैं. Okay? So I have got ample of reasons to convince you कि आपको psychology क्यों पढ़नी चाहिए. Okay, to make it a little more interesting, I have a few more slides. आप कैसे यूज कर सकते हैं साइकोलॉजी को आप अपनी एवरीडे लाइफ में, यू नो. ये कुछ लास्ट टिप्स हैं जो मैं आपको छोड़ के जाऊंगी, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे मैम तो एडवर्टाइजमेंट करके ही चली गई, हमें कुछ तो बता के नहीं गई. व्हाट डिड वी गेन? हमें क्या मिला इस पूरी वर्कशॉप लगाने के बाद 2 घंटे, है ना? मिला ये कि आपको ये पता चला कि साइकोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, और साइकोलॉजी आपकी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. और अब हम बात करेंगे कि आप कैसे यूज कर सकते हैं. राइट, आप साइकोलॉजी को यूज कर सकते हैं मोटिवेशन ढूंढने में. चाहे आपको आपका कोई गोल है, आपका कोई गोल है जो आपको फुलफिल करना है, आपको वेट लॉस करना है, आपको कुछ भी करना है, तो यू आर यूजिंग साइकोलॉजी. या आप यूं कहें कि आप साइकोलॉजी को यूज कर सकते हैं टू फाइंड मोटिवेशन. देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको छोटे से टिप्स की बात करूं तो नंबर 1 होता है आपके क्लियर और रियलिस्टिक गोल्स होना. एक होता है सिर्फ क्लियर गोल होना, एक होता है क्लियर और रियलिस्टिक गोल्स होना. मान लो मुझे वेट लॉस करना है, राइट, तो मैं बोलूंगी नहीं जी, मैं तो एक हफ्ते में 6 किलो, आई वांट टू लूज 6 kgs इन 1 वीक. गोल मेरा एकदम क्लियर है, 6 किलो वेट लूज करने का है मेरे को, लेकिन एक हफ्ते में इज इट रियलिस्टिक? इट्स नॉट रियलिस्टिक एट ऑल. सो क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स जब तक आपके नहीं होंगे तब तक आपका जो है गोल पूरा नहीं होगा. इसीलिए इफ यू वांट टू फाइंड मोटिवेशन टू डू समथिंग, द नंबर 1 थिंग दैट यू कैन डू इज सेट क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स. जब आपके क्लियर और रियलिस्टिक गोल्स होंगे तब आपको सामने वाला जो टास्क है वो मैनेजेबल लगने लगेगा. जब टास्क मैनेजेबल लगने लगेगा तो उसे खत्म करने की मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. राइट, दिस इज वन स्मॉल टिप. Another thing that you can do is when you want to find yourself a motivation, कि जो भी आपने गोल सेट किया है उसको डिवाइड कर लो, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो. ठीक है, whenever one step is finished, आप उसको सामने, जिसको हम कहते हैं ना, आपको ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, अपने आप को शाबाशी दो, so that it creates a feedback. It creates a feedback mechanism in you. तो वो जो आपने गोल पूरा किया, that will become a motivation for your next step, and your next step will become a motivation for your next step, and this is how you find motivation, by using the psychological principle of setting realistic goals. And second one is reward. Okay, smile in order to feel happier. I think we all want to be happy in our lives. I think that is the ultimate goal of human life. खुश रहना चाहते हैं हम, ठीक है. And psychology is something that gives you a lot of things that you can improve in yourself, that you can enhance in yourself in order to be happy, in order to lead a happier life. And a very small trick is smile. आपको कभी लगे कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, या आप बहुत सैड हो, या आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, तो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, जस्ट स्माइल ईयर टू ईयर. बड़ा सा स्माइल करो. इट मे बी फोर्सफुल हो सकती है वो स्माइल, लेकिन आप स्माइल करें, बड़ी सी स्माइल करें, तो क्या है, दिस विल अगेन क्रिएट अ फीडबैक मैकेनिज्म.
आपका जो ये दिमाग है बहुत पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल है कि आप इसको बहुत इजीली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. तो लेट अस डू दैट. आप स्माइल कीजिए, ब्रॉड स्माइल कीजिए, ठीक है ना. तो दैट विल क्रिएट अ फीडबैक मैकेनिज्म इन योर ब्रेन कि दिस इज गुड. And trust me, this works. And I'm not saying it because I've written it over here. I'm saying this because it does work. हाँ, अब अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ट्रैजिक इवेंट हुआ है, you have lost a loved one or things like that, तो शायद ये ट्रिक ऐसे सिचुएशंस में काम नहीं करे. But if you're feeling down in everyday life, you're feeling low at some point of time, then most definitely you can use this very, very simple trick to smile out, big broad smile ear to ear, and if possible stand in front of your mirror. That works way better. Visual stimulation भी मिलता है ना, so it works way better. Another trick. See, another trick. How to make friends. A Benjamin Franklin method. बहुत ही छोटा सा ट्रिक है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. आई वोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, ये साइट पे लिखा है तो आप पढ़ भी सकते हैं. बट इसका एक जिस्ट है, छोटा सा कंक्लूजन है, मैं आपको बता देती हूँ. जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें ये कंक्लूजन निकला कि हम उन लोगों, वो लोग हमें पसंद करते हैं या हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनसे हम या तो फेवर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर जिनकी हमने हेल्प करी होती है. सो अ वेरी इजी ट्रिक इज कि अगर आपको किसी को अपना फ्रेंड बनाना है तो एक छोटा सा फेवर मांग लो. उससे क्या होगा, उस इंसान ने आपकी हेल्प की तो उसका ब्रेन उसको ट्रिक करेगा दैट आई लाइक दिस पर्सन. थोड़ा ट्रिकी है समझना, बट इट्स रियली वेरी सिंपल. द ओनली स्मॉल ट्रिक इज फॉरगेट एवरीथिंग. छोटा सा ट्रिक बस यही है कि अगर आपको किसी को अपना दोस्त बनाना है तो उससे एक छोटा सा फेवर मांग लो. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेंजर है, हाय डू यू हैव अ पेन. पेन है क्या आपके पास? वो बोलेगा हाँ जी है. उसने आपको पेन लेंड किया, दैट इज अ स्मॉल फेवर, वेरी स्मॉल, स्टिल अ फेवर. तो इट कैन क्रिएट दैट फर्स्ट स्टेप इन फ्रेंडशिप, ठीक है ना. सो दिस इज वन स्मॉल ट्रिक. कोई सा भी फेवर मांगो आप, एनी फेवर, ठीक है ना. आप सजेशन मांग लो किसी से. मान लो आपको कोई फैमिली मेंबर है, मतलब कोई रिलेटिव है जिससे आपकी थोड़ी कम बनती है, आपको लगता है कि आपको उसके साथ अपने रिलेशनशिप सुधारने चाहिए. कुछ नहीं करना, फोन करो उसको और उससे किसी चीज पे ओपिनियन मांग लो. मैं सोच रही थी कि ऐसे कर लेना चाहिए, या उनके घर चले जाना चाहिए, या उनको फोन कर लेना चाहिए. व्हाट डू यू सजेस्ट? ओपिनियन मांग लो. वेरी स्मॉल ट्रिक, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स every time like magic. Try it to believe it. Okay, so yeah, use subliminal signals to make others agree with you. बहुत छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत काम करता है. मान लो आपको किसी को कुछ कहना है, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो अग्री करेगा सामने वाला आपकी बात पे या डिसएग्री करेगा. तो व्हाट यू यूज इज कि हम ऐसे कहते नहीं है, ऐसे ही होगा ना, है ना. What I'm doing right now is I'm moving my head like this because I want you to agree. I want you to say yes. So this is my subliminal signal. आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत फोर्स्ड है, ठीक है ना, लेकिन आप मेरे साथ अग्री कर जाओगे. It's that simple. ठीक है. या मुझे कुछ कहना है आपको कि मान लो कि वो तो अच्छा एक्टर नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं. What I'm doing right now is बोलते बोलते I am doing a head movement इस डायरेक्शन में. This will automatically make you with my opinion कि हाँ ना वो तो अच्छा नहीं है. आप भी यही बोलोगे, नहीं सही कह रही है, वो तो अच्छा नहीं है. छोटे छोटे सिग्नल्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आपके जेस्चर्स हैं, आपका बॉडी पोस्चर है, ठीक है. इससे आपको क्या है कि सटल, वेरी सटल एक्शंस
that can make other people agree with you. So yeah, good manipulation trick, I guess. बस ज्यादा नहीं बताऊंगी, ओके? बस फिनिश हो गए अभी है. लीडरशिप स्किल्स, यस. आप में अगर एकदम से लीडरशिप स्किल्स भर नहीं सकता तो एटलीस्ट साइकोलॉजी आप में ये आपको इतनी हेल्प तो कर ही देगा इंस्टेंटली कि आप अपने आप को एक लीडर की तरह महसूस करेंगे. ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना है. लीडर कहाँ पे होता है? लीडर हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल में होता है. मान लो आप यू आर इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सबका ओपिनियन सुनना है और अपना ओपिनियन जो है जेनरसली क्लियरली सबको बताना है दैट ओके आई हैव लिसन टू यू, आई हैव लिसन टू यू, आई हैव लिसन टू यू, आई हैव लिसन टू यू. तो आई थिंक सबको कंबाइन करके मेरा ये ओपिनियन है कि ऐसे करना चाहिए. सिंपल. एक छोटा सा ट्रिक है. अभी काम कैसे करेगा? सबको लगेगा कि आपने उनकी बात की भी कंसिडरेशन करी, आपने उसकी बात की भी कंसिडरेशन करी, आपने उसकी बात की भी कंसिडरेशन करी, ठीक है? लेकिन होगा क्या? होगा वही जो आपने एंड में बोला. दैट विल मेक यू अ लीडर ऑटोमेटिकली. दिस इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल ट्रिक, ठीक है, टू मेक यू फील and give you confidence that you can become a leader. ठीक है? बाकी अगर आपको लीडरशिप स्किल्स एक्चुअली में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करने हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप लीडरशिप स्किल्स को बनाने के लिए जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसको फॉलो कीजिए. बट दिस वाज अ स्मॉल ट्रिक दैट आई वांटेड टू गिव यू. यूज स्मॉल प्लेट टू फील फुल. ये डाइटिशियंस का बेस्ट ट्रिक है. छोटी प्लेट में खाना खाइए, जल्दी पेट भर जाता है. जैसा कि मैंने बोला हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है लेकिन उसको मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान है. ठीक है? तो आप छोटी प्लेट लेंगे, उसको लेगा अरे पूरी प्लेट खाने से भरी हुई है, मैंने तो बहुत खा लिया, आई एम फुल. दिस इज व्हाट वी डू इन साइकोलॉजी. I think good enough tips and tricks, I guess. Yes, no, Yes. anything? Yes. I think सब सो गया ना? No, ma'am. Thank you so much for not sleeping and coming with me, being here with me for the 2 hours. So to finish off my workshop, I would like to say कि मेरे लिए इन माई ओपिनियन साइकोलॉजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस दैट कैन बी स्टडीड एट ऑल बिकॉज इट इज द साइंस ऑफ अस. हमारी अपनी साइंस है तो आई थिंक इट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट. इट इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. So yeah, these are my ending quotes. This is how I rest my case, Your Honor. I wanted to prove that psychology is important. Psychology is there in every single moment of our lives. And मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ये कन्विंस करने के लिए कि psychology is present in every single part of our life. So this is how I rest my case. So if you have any questions, any queries, please ask. I'm available. Can introverts become good leaders and teachers? Absolutely yes. Introverts का मतलब ये नहीं होता कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती. इंट्रोवर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते. इंट्रोवर्ट का सिंपल सा मीनिंग है दैट दे आर मोर कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स रादर देन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. राइट? So yes, introverts can most definitely become good leaders, fantastic leaders, and fantastic teachers as well. Is there any psychology in attraction between? Absolutely yes, Varun. There is psychology of interpersonal attraction. पूरा का पूरा course है different. Can you define soul? I think जीत आपने ये जो question पूछा है that is very complex. पर
शॉर्ट में डिफाइन करें तो सोल इज दैट कॉन्शियस पार्ट ऑफ a human being that gives us life, that gives us energy, the life energy that we have, that makes us do things. That is soul. That's according to me. Tips to identify if someone is playing with our mind or manipulating. It's not very simple, but yes, you can identify. If not 100% of the time, then at least 60% of the time आपको ये पता चल जाता है कि अगर कोई आपके साथ मैनिपुलेशन गेम खेल रहा है या आपको प्ले कर रहा है. लेकिन द 60% ऑफ द टाइम्स जब आप ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, वो ये तभी कर पाते हैं व्हेन दे हैव इविल इंटेंशंस. ठीक है ना. अब होता क्या है, आपको पता है कि कब आपकी मम्मी आपको ट्रिक करती है कुछ ना कुछ बोल के कि बेटे ये खा ले, तो ऐसे मतलब आपको पता चल जाता है कि कब मम्मी आपके साथ ट्रिक खेलने की कोशिश कर रही है. राइट. ये कैसे पता चल जाता है? क्योंकि आप उन्हें जानते हैं. ठीक है. आप उनके मैनरिज्म्स को जानते हैं, आप उनकी लैंग्वेज को पहचानते हैं. So this is how it is very easy for you to recognize when she is trying to play tricks on you. Either it is for your good or for your bad. So yes, knowing जो सामने वाला इंसान है उसको अगर हम समझ लेते हैं, उसको अगर हम जानते हैं, तो it becomes a lot easier for us to detect if that person is trying to play games. If possible, please arrange soon a workshop on topics like how to overcome daily stress, anxiety, or depression. Okay, stress management is something you want to talk about. Self-confidence is something you want to talk about. Or how to start our life from scrap again. Well, I think self-confidence के ऊपर workshop के बारे में हम सोच सकते हैं. और what I say, we can talk about stress management as well. We'll sure think about it. Can we prove that soul gives energy? Well, I don't think so. It's a concept. It's an abstract concept. So yeah. Does astrology really affect us and our mind, or just play with our mind psychologically? Controversial question, and but I won't be a part of any controversy, and I'll give you a clear-cut answer. Astrology is a science. So you cannot simply deny something which is a science, which is a proven science. ठीक है ना? लेकिन it does play with our mind psychologically. पर फर्क इसमें ये है कि एस्ट्रोलॉजी आपके साथ माइंड प्ले नहीं करती है, एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं. Astrologers play with your mind psychologically. Astrology doesn't. Astrology has a very strong scientific background, and it is absolutely a perfect science if studied well. Do you believe in cosmic energy, or it's all a sub-part of psychology? Cosmic energy is a part of physics, I guess. And if something is a part of physics, I guess it exists. And I trust physics blindly. Planets like Rahu, Ketu effect. Rahu and Ketu are not planets. Rahu and Ketu are 2 points in the orbit of the Earth around the Sun. Detail में नहीं पता मुझे, but yes. Yeah. All I can say is someone who knows astrology very well, like I am a person who knows psychology well, not astrology, तो वो आपको शायद इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे. लेकिन मैं इतना I can say that with 100% surety that it is an absolute science. It is not a farce. Thank you so much. It was my pleasure. I love talking about my subject. मुझे नहीं पता कितने लोग बोर हुए, पर मुझे बहुत मजा आया. Thank you so much for giving me this opportunity.